Hello students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. If you have not subscribed the channel, do subscribe the channel. So now let us start our topic. So what is d-pi p-pi bond? So the name itself told that when there is the involvement of one d orbital of one atom and a p orbital of another atom, a bond form is known as d-pi p-pi bond. Why it is a pi here? Because this is formed by the sidewise overlapping or the lateral overlapping. So this is known as our d-pi p-pi bond. So how we can define it? A bond that is formed between the lateral overlap of a 1p and d orbital is called as our d-pi p-pi bond. The main examples are the oxides of sulfur and our sulfur dioxide, sulfur trioxide and sulfite ion also. There will be the d-pi p-pi bond. So 3d orbitals are involved in the d-pi p-pi multiple bonding system of our sulfur and oxygen. So just now we will see the details of our these molecules. And just when we are talking about the molecular orbital theory, so in the case of molecular orbital theory, if we talk about our p-pi d-pi bond, you have to remember one thing. If the addition overlapping takes place, they will form the bonding molecular orbital, and if the subtraction overlapping will takes place, they will form the anti-bonding molecular orbital. So I hope this can be seen with this orbital diagrams in the details. So as we know that generally whenever we are talking about the shapes of the orbital, so what is important there are always one plus sign, one negative signs. वैसे तो अगर हम बात करेंगे तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, what is an orbital? Orbital is the space where the probability of finding an electron is 99.9%. मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना होती है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए. बट वी नो दैट ऑर्बिटल में कहीं पर हमारा न्यूक्लियस ज्यादा है, कहीं पर मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड वी विल प्लेस वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इन द वन lobes of an orbital. So this is our p orbital. This is our d. As we know that there are 5d orbitals. What are the 5d orbitals? dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So अगर हम देखते हैं कि हमारा एक p orbital दूसरे d orbital के साथ में एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है. एडिशन ओवरलैपिंग मीन्स दिस पॉजिटिव लोब and this positive lobe, this negative lobe and this negative lobe will come close to each other and they will form the pi bond. So this is a result of a bonding molecular orbital. So in similarly, if we will talk about that this not comes together means यहाँ पर दोनों प्लस प्लस पास में आ रहे थे, यहाँ पर एक प्लस रहेगा और एक हमारे ऑर्बिटल का माइनस लोब, माइनस प्लस. व्हेन दिस टाइप ऑफ द कंडीशन रहेगी तो ऐसे में क्या होगा, हमारा सबस्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी. मीन्स हमारा इधर पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है. इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि दिस वीडियो इज मेनली फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 एंड SO3. सो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर एनी ऑर्बिटल्स कंबाइंस, तो वहां पे अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो हमारा d-pi p-pi बॉन्ड में एक d ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके d-pi p-pi बॉन्ड फॉर्म करेगा. अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से देखेंगे, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तब एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तब वहां पर कैसा हो रहा है बेटा, हमारा सबस्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग. तो आई विल students, now let us see the details of our structure of sulfur dioxide. So sulfur dioxide molecule will have the double bonds with the sulfur and oxygen. There will be the double bond and there will also be seen the d-pi p-pi bonding and lone pair of electron is present on the sulfur molecule. तो VSA pair theory क्या बोलती है, अगर lone pair होता है तो molecule की ज्योमेट्री का शेप हमारा रेगुलर ज्योमेट्री से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. अगर इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करेंगे. और अगर इसका शेप कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, बट इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सल्फर में, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है एंड द बॉन्ड एंगल चेंजेस फ्रॉम 120 टू 109.19.5 डिग्री. और इसका जो शेप रहेगा वो कैसा हो जाएगा, बैंड शेप या एंगुलर शेप होगा. और इसमें सिमेट्री कौन सी रहेगी, ग्रुप सिमेट्री विल बी C2V. नाउ लेट अस सी हाउ द सल्फर फॉर्म्स द बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन. सो SO2 मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो हमारा सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, S for 16, S for 16. सो कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p4, 3d,
0 बिकॉज दिस इज द कम्प्लीटली फिल्ड, तो हम लोग इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 6, 3s2 एंड 3p4। सो जस्ट वी विल राइट इन द सेंटर, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे भी लिख सकते थे, 3s 3px 3py 3pz, और 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज 3dxy 3dyz 3dxz 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। बट ये सब भी कैसे हमारे खाली है ना, तो जनरली हम कैसे लिखते हैं, हमारा 3s हो गया, 3px हो गए, yz एंड 5 हमारे d ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, नाउ वी हैव टू चेक। सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कैसे प्लेस करेंगे? हमारे पास हमने फिल कर दिया इनको 1 2 3 4 एंड 5 6। अब हमको क्या करना है, जैसे इसको फिल कर लो आप, 3s2 है, 3px1 y1 और ये z1, और ये 4th इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा x में। तो अभी हमने क्या देखा, 2 तो हमारे हो गए पेयर में, तो ये हम इसको हम क्या बोलते थे, लोन पेयर। अगर हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स में प्रेजेंट है तो उनको हमने क्या बोल दिया था, लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि जो हमारा सल्फर जब मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन हमको अनपेयर्ड करने पड़ते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये हमारे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, d ऑर्बिटल्स में, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। अभी हमको देखना है कि अभी हमने सल्फर को तो प्लेसमेंट कर दिया है, और आगे मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे, सल्फर का तो हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, 3s2 3px1 3py1 3pz1 एंड 3pz। ये कैसे आया, हमने ये जो हमारा px2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा दिया, d ऑर्बिटल में। तो अब आप देख रहे हो टोटल हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी फटाफट ये देख लेते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसे हमको, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 8 है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। ओके, सो बिकॉज 1s तो हमारा कैसा हो जाएगा, इनर मोस्ट शेल है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या पोजीशन हो रही है हमारे पास, ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको कैसे कैसे रखते हैं। सो ये हमारा हो गया 2s2 2px2 2pyz 2px। ओके, सिमिलरली दिस ऑक्सीजन ऑल्सो हमने फिल कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, तो ये हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे, तो बॉन्डिंग शो करने के लिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर दिया, तो ऑक्सीजन ने कितने शेयर कर लिए, 2 सल्फर के साथ, तो ये इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली यहाँ पर भी सल्फर ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बस अभी हमको देखना क्या है कि सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, 1 2, इसमें 2 इस वाले ऑक्सीजन से शेयर करें, 2 इस वाले ऑक्सीजन से शेयर, बट ये बच गया हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, 2 तो बन रहे हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड पहले बनेंगे, 2 बनेंगे हमारे पाई बॉन्ड। जब भी फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है, सेकेंड होता है हमारा पाई होता है, और इधर आगे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी इसको डिटेल्स में समझने के लिए कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। कि जस्ट पहला फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अगर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल में, ये जो हमारा SO2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने सराउंडिंग एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम्स कितने हो रहे हैं, 2, और लोन पेयर कितना आ रहा है, 1। तो अगर लोन पेयर 1 आ रहा है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा आपका 3। तो 3 वाला कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। तो एक हमारा ये तरीका होता है ना, तो ये इजी है, आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग एटम्स 2 हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो टोटल विल बी 3, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। एंड इफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारा बॉन्ड एंगल होता है 120, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर द ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड एंड द बॉन्ड एंगल चेंजेस टू 119.5 डिग्री, एंड द शेप ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम आवर ट्राइगोनल प्लेनर to our
बैंड शेप जैसा कि वाटर में होता है या एंगुलर शेप। तो अभी हम जो एमएससी में आता है हाइब्रिडाइजेशन आपको शो करना है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सल्फर आ जाएगा सेंटर में, वैलेंस शेल ही लेंगे। वैलेंस शेल मीन्स हम अपना 1s2 और 2s2 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3s2 3px2 3py1 3pz1। तो हमने क्या किया है, जो हमारे px के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको पहुंचा दिया z में। अब यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है, आपने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन करना है तो 1s और 2p क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा और बाकी ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड और ये अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये बेसिक सी बात होती है, जब भी हम देखते हैं कि हमारे अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा है, 2 ऑक्सीजन थे, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 2s2 2px2 2py1 2pz1। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब क्या होगा, ये जो हमारा लोन पेयर है वो एज इट इज रहेगा। 3px1 एक इलेक्ट्रॉन था, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में y जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ऑक्सीजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ओवर लैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, एक s और 2p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। अब क्या होगा, ये सिंगल बचा है, ये सिंगल बचा है, तो इनको भी हमें बॉन्ड बनाना है ना। तो अब जब हमारा ये सल्फर का 3pz, ये कौन सा ऑर्बिटल हो रहा है, pz ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा साइड वाइज, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा p पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है हमेशा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स से साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिमिलरली ये जो हमारा ऑक्सीजन एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल, वो हमारे सल्फर के dxy इलेक्ट्रॉन के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और कौन सा बॉन्ड बना जाएगा, p डी पाई बॉन्ड। तो आज का जो टॉपिक था हमारा डी पाई बॉन्ड, p डी पाई बॉन्ड मीन्स जब एक सल्फर का d ऑर्बिटल हमारे ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, p डी पाई बॉन्ड का। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर अवर d पाई बॉन्ड एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अवर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल तरीका है, फॉर्मूला कैसे निकालना है, एक हमारा सेंट्रल एटम है और उसमें हमारे सराउंडिंग एटम्स 2 हैं, तो सराउंडिंग एटम्स 2 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, सो 1 + 2 = 3। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बैंड स्ट्रक्चर होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसी टाइप का हम देखेंगे हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल। सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल को जस्ट हम देखेंगे तो वही है, अगर हम इसका पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कर लो। देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड में आपका लोन पेयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सल्फर ले लिया हमने। नाउ वी आर लुकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अवर SO3। ओके, सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या है, सेंट्रल में सल्फर ले लिया, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली थी, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन हमारी, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s for 16, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, तो ये तो पैक रहेगा। अब बचता है हमारे पास 3s2 3p4 3d0। तो अगर हम इसको ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हम कैसे फिल करेंगे, सो जस्ट 3s2 3px1 y1 z1 एंड 4 है ना, तो ये एक और आ जाएगा। तो मीन्स हमारा जो 3s2 3px2 3py1 3pz1 और 3d पूरे हमारे खाली पड़े हैं। अब हमने कितने ऑक्सीजन आ रहा है, 3 ऑक्सीजन आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, इसको हमें अनपेयर्ड करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो सल्फर है, अगर हम इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है तो इनको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 ऑक्सीजन है, तो अब 3 ऑक्सीजन भी हमारा सल्फर फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली सल्फर फैमिली सब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं ना, ओल्ड स्टाइल। तो अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4, इसको भी अपन लिख सकते हैं 2px2 2py1 2pz1। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 6 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो यहाँ पर इसको भी लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी अपना
1 2 3 4 5 6। तो अब देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करेगा सल्फर, पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो एक सिग्मा, दूसरा करेगा तो ये पाई बनाएगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। तो आपको दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पर हमारे पास सल्फर की जो सिचुएशन होने वाली है वहाँ पर क्या हो रहा है, और ऑक्सीजन के पास में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको विजिबल होंगे। तो सल्फर ने अपने सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में इन्वॉल्व कर दिए हमारे बॉन्ड फॉर्मेशंस में, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, और ऑक्सीजन के पास में हमारे को दिख रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे। आपको समझना क्या है, अगर इधर पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 3 सराउंडिंग एटम्स है। तो आपको वैसे ही नंबर 3 मिल रहा है, तो अगेन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ वी कैन चेक। और एक और तरीका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का होता है वो क्या होता है कि हम सिंपल हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द वैलेंस नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस our monovalent atoms minus the charge on the cation plus the charge on the anion। तो अब भाई इन द केस ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो रहा है, हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 है, यहाँ पे कोई भी कैटायनिक नहीं है, कोई भी हमारे पास मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, फिर हमारे पास कैटायन नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, और ना ही एनायन पे कोई चार्ज है, तो सभी आपका 0 0 हो गया। तो 6/2 कितना आ जाएगा आपको 3। सो डायरेक्टली आपको कौन सा हाइब्रिडेशन है 3 ऑर्बिटल्स वाला sp2, एक s और 2 p। तो हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ईजी है। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ अवर सल्फर ट्राइऑक्साइड, जस्ट वी हैव टू फॉलो द सेम मैनर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सल्फर जो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखी थी उसकी, वो क्या रहती है 3s 3px 3py एंड 3pz। तो आपको क्या करना है, जो 3s2 है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा डी में, और हमारा जो px है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा डी में। तो अभी जो पोजीशन हो रही है हमारी सल्फर की, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं, अनपेयर्ड हो गए। सल्फर के जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो वो कैसे हो गए बेटा, अनपेयर्ड हो गए। और आपने क्या बोला, हाइब्रिडेशन इज sp2, तो सेम है वह यहाँ पर भी, जब एक s और 2 p कंबाइन होंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो अब अपन को क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है। तीनों ऑक्सीजन एटम सेम है, किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, जैसे नाइट्रेट में NO3 माइनस होता है, तो हमने 3 ऑक्सीजन एटम्स ये लिख दिए। सेंट्रल वाला कौन सा हो जाएगा आपका, ये सल्फर एटम। अब हमको बॉन्डिंग समझनी है ना, तो बॉन्डिंग सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में। तो ये बना दो अपना एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड वन, दिस इलेक्ट्रॉन विल पेयर विद द सेकेंड ऑक्सीजन एटम। ये भी कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, when 1s and 2p हाइब्रिडाइज्ड, और थर्ड ऑक्सीजन से करवा दो इसको सिग्मा। आया समझ में। तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे रेडी हो गए। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास बचे हुए हैं, ये तो हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो 3 है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देखेंगे हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है 2pz, इसको करवा दो पेयर अप विद द pz ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमारा, ऑक्सीजन का p है और सल्फर का p है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, p पाई। ओके, सिमिलरली ये हमारे ऑक्सीजन है, ये 2s 2px 2py 2pz। now this is the p orbital of oxygen and this is our 3d। तो ये आपके कौन से हैं, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz²। तो ये क्या कर दिया अभी हमने, ओवरलैपिंग किसकी करेंगे अब हम। नाउ दिस 2pz ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद द 3dxy। ओके, जो सेकेंड ऑक्सीजन एटम है। अच्छा, अब ये p है ऑक्सीजन का और ये d है सल्फर का, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, p पाई d पाई बॉन्ड। ये माइनस नहीं है, ये बता रहा है कि p ऑर्बिटल और ad ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं।
अब बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड ऑक्सीजन उठाओ और इसका और सल्फर का d ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये हमारा, इनको भी आप लिख दीजिए यहाँ पे, दिस इज अवर 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो ये हमारे क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, हमारे p pi d pi bond. So this type you can see that in the case of our sulfur trioxide molecule, there are 3 sigma bond, 3 pi bond, and out of 3 sigma and 3 pi bond, one is our p pi and other two are p pi and d pi bond. So I hope this is clear to all. आपको समझ में आया होगा. So you can take the screenshot and you can complete your notes. Thanks for watching the video. Do subscribe the channel.